Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel, The Studious Kids. I'm here again with a new video. In this video, we will talk about a letter written by Abraham Lincoln to his stepbrother John Daniel Johnston. So, before we go to the letter, let's see the introduction of our writer, who is Abraham Lincoln. Abraham Lincoln served as the 16th President of the United States from 1861 to 1865. He was known for his role in the preservation of the Union during the American Civil War and emancipation of slavery. His Gettysburg Address stands as one of the famous pieces of oratory in American history. In April 1865, with the Union on the brink of victory, Abraham Lincoln was assassinated by Confederate sympathizer John Wilkes Booth. His untimely death made him a martyr to cause of liberty, and he is widely regarded as one of the greatest presidents in the history of United States of America. अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे कि जिनका कार्यकाल जिनकी प्रेसिडेंसी 1861 से 1865 की थी। अमेरिकन सिविल वॉर के दरमियान उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था और उसी समय उन्होंने स्लेवरी एमांसिपेशन का एक काफ़ी बड़ा काम भी किया था कि जिसका मतलब है उन्होंने अपने देश में स्लेवरी को नाबूद किया था। His Gettysburg Address stands as one of the famous pieces in oratory history. अमेरिकन oratory history में उनका जो Gettysburg Address था वो एक काफ़ी फेमस पीस है. You can go to the Google and Google it and you can find the whole Gettysburg Address. In April 1865 जब उनका यूनियन इलेक्शन में विक्ट्री के कगार पे था तब Abraham Lincoln was assassinated by Confederate sympathizer John Wilkes Booth. अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई जॉन विक्स बूथ के हाथों। ये उनकी इस अनटाइमली डेथ ने उन्हें एक मार्टियर बना दिया था। अमेरिकन हिस्ट्री में वो ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में अपना स्थान रखते हैं। ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट इन द अमेरिकन हिस्ट्री। So now let's see the brief of the letter. Abraham Lincoln wrote this letter to his stepbrother John Daniel Johnston 10 years before he stepped into the White House. He wrote the letter in response to his stepbrother asking him for money. This letter becomes significant due to the nature of the word used, which seemed contradictory to the poise and stoicism he otherwise known for. Even though the words seem harsh, Lincoln truly wanted his brother to do right with his life and earn an honest living. ये लेटर अब्राहम लिंकन ने अपने स्टेप ब्रदर को लिखा है जॉन डैनियल जॉनस्टन को 10 साल पहले कि जब वो व्हाइट हाउस में आए थे। ये लेटर उन्होंने एक रिस्पॉन्स है कि जो उनके भाई जॉनस्टन ने उनको लिखा था पैसों के लिए। इस लेटर में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि वो क्या है कि इसमें एक ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं अब्राहम लिंकन के द्वारा कि जो उनकी पर्सनालिटी से पूरे कॉन्ट्राडिक्ट हैं। वर्ड्स इसमें काफ़ी हार्श हैं, साउंड काफ़ी हार्श कर रहा है, लेकिन लिंकन ट्रूली अपने भाई को वो चीज़ सिखाना चाहते थे कि जो उन्हें एक ऑनेस्ट लाइफ प्रदान करे और वो अपनी लाइफ में खुद ही पैसा कमाना सीखे। So let's move to the letter. So now I'm starting to read the letter. Letter to D. Johnson, January 2, 1851. January 2, 1851 वो डेट है कि जब अब्राहम लिंकन ने ये लेटर लिखा था। Dear Johnston, your request for $80 I do not think it is best to comply with now. At the various times when I have helped you a little, you have said me we can get along very well now, but in a very short time I find you in the same difficulty again. Now this can only happen by some defect in your conduct. What that defect is, I think I know. You are not lazy and still you are an idler. Here the meaning of idler is
अ हैबिचुअली लेजी पर्सन, जिसकी आदत ही लेजी पर्सन, जो आदती लेजी पर्सन है. आई डाउट वेदर सिंस आई सॉ यू यू हैव डन अ गुड whole day's work in any one day. You do not do very much dislike to work, and still you do not work much merrily, because it does not seem to you that you could get much for it. This habit of uselessly wasting time is the whole difficulty. It is vastly important to you, and still more important so to your children. That you should break the habit. It is more important to them because they have longer to live and can keep out of an idle habit before they are in it, easier than they can get out after they are in. So अब्राहम लिंकन लिखते हैं कि उनके भाई को लिखते हैं कि जब तुमने $80 का रिक्वेस्ट की थी, वो अभी उस रिक्वेस्ट का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने उनके भाई को काफ़ी टाइम हेल्प किया था, कि जैसे उन्होंने सेकंड लाइन में लिखा है, एट वेरियस टाइम व्हेन आई हैव हेल्प्ड यू. जब उन्होंने काफ़ी बार हेल्प किया था, तब उनके भाई ने उन्हें वो ही कहा था कि बस थोड़े दिन की बात है, फिर मैं लौट जाऊंगा कि जैसे पहले हुआ करता था. लेकिन अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मैंने तुम्हें फिर से थोड़े दिन बाद उसी डिफ़िकल्टी में वापस से फंसते हुए देखा है. नाउ ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके अंदर उनके कंडक्ट में कुछ डिफेक्ट था, और वो डिफेक्ट अब्राहम लिंकन को पता था. वो डिफेक्ट क्या था कि अब्राहम लिंकन कहते हैं कि यू आर नॉट लेजी बट स्टिल यू आर एन इडलर. उनके भाई को अब्राहम लिंकन यूँ कहते हैं कि तू लेजी नहीं, आलसी नहीं है, लेकिन तू फिर भी एक हैबिचुअली लेजी पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है. उन्होंने उनके भाई से कहा कि मुझे याद नहीं है कि लास्ट तूने कब कौन सा काम शिद्दत से किया था. वो ये भी कहते हैं कि ऐसे यूजलेसली टाइम वेस्ट करना ही तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है, और ये इम्पोर्टेंट है कि तुम ये कंडक्ट को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करो और करेक्ट करो. ये उनसे ज़्यादा उनके बेटे को, उनके बच्चों को खास ध्यान रखना पड़ेगा, उनके चिल्ड्रन को. अब्राहम लिंकन कहते हैं कि ये तुमको इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा उन लोगों को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें तुमसे ज़्यादा लॉन्गर लीव है, उनके तुमसे ज़्यादा साल है, ज़िंदगी के ज़्यादा साल है. अगर उनको ये हैबिट हो गई तो उनको इनसे बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल होगा. It is more important to them because they have longer to live and keep out of an idyll before they are in it, easier than they can get out after they are in. उन्हें एक बार ये हैबिट लग गई तो उन्हें बाहर निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी. You are now in need of some money, and what I propose is that you should go to work tooth and nail for somebody who will give you money for it. So अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मनी की ज़रूरत है, और मेरा काम क्या है कि तुम्हें काम पर भेजना, और उस काम पर भेजना कि जहाँ पे तुम टूथ एंड नेल क्या है कि वो एक फ्रेज इडियम है कि जिसका मतलब है अपनी पूरी शिद्दत से काम करना, विथ वंस ऑल रिसोर्सेज और एनर्जी, अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करना. अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरा काम है मेरा पर्पस है तुम्हें काम पर भेजना कि जहाँ तुम अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम कर सको किसी और के लिए, कि जिससे तुम्हें खुद को पैसे मिले. लेट फादर एंड योर बॉयज टेक चार्ज ऑफ योर थिंग एट होम, प्रिपेयर अ क्रॉप एंड मेक द क्रॉप, एंड यू गो टू वर्क फॉर द बेस्ट मनी वेजेस और इन डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट you owe that you can get, and to secure a fair reward for your labor. So वो अब्राहम लिंकन उन्हें ये कहते हैं कि वो उनके फादर जो थे वो उनका एक खेत था. तो अब्राहम लिंकन यूँ कहते हैं कि अब खेतों का काम फादर और तुम्हारे बच्चों को संभालने दो, और तुम जाओ काम पर. वो लोग क्रॉप प्रिपेयर करेंगे और वो ही क्रॉप बनाएंगे. यू टू बेटर गो टू द वर्क फॉर द बेस्ट मनी वेजेस. तुम एक अच्छी सी जॉब पे जाओ और अपने लिए पैसे कमाओ.
अगर पैसे ना भी कमा सको तो तुम्हारे ऊपर जो डेट है वो क्लियर करो और अपने लेबर का एक फेयर रिवॉर्ड लो। सो नाउ इस लेटर में अभी एक मेन चीज़ है कि वो उनके भाई को एक चीज़ प्रॉमिस करते हैं कि एक उनके बीच में वन टाइप ऑफ डील होती है कि वो क्या डील है तो वो देखते हैं हम। आई नाउ प्रॉमिस यू दैट फॉर एवरी डॉलर यू विल बिटवीन दिस एंड द फर्स्ट ऑफ मे get for your own labor either in money or as your own indebtedness, I will then give you one another dollar. By this, if you hire yourself at $10 a month from me, you will get 10 more, making $20 a month for your work. सॉरी। तो अब्राहम लिंकन उन्हें ये ऑफ़र देते हैं कि इस डेट से यानी जनवरी 2 से 1 के बीच में तुम जितने भी पैसे कमाते हो उसके अब्राहम लिंकन उसे एक ज़्यादा देगा। सपोज कि इफ़ ही गेट $1, लिंकन प्रॉमिस्ड हिम टू गिव वन अनदर डॉलर। अगर वो $1 कमाते तो लिंकन उन्हें $1 एक्स्ट्रा देगा। और अगर इस मंथ में उन्होंने $10 कमाए तो लिंकन विल गिव हिम मोर $10। सो ये उनके बीच में डील हुई। बाय दिस, इफ़ यू हायर योर सेल्फ एट $10 a month फ्रॉम मी यू विल गेट 10 मोर। सो ये कहते हैं कि अगर इस समय के दौरान तुमने $10 कमाए तो मेरी तरफ से तुम्हें और $10 मिलेंगे। सो तुम्हारे एक मंथ का वेज $20 होगा। In this, I do not mean you shall go off to St. Louis or lead mines or the gold mines in California, but I mean for you to go at it for the best wages you can get close to home in Coles County. अब्राहम लिंकन उन्हें ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोने या लेड की खदानों में जाओ मजदूरी करो कि जो सेंट लुइस और कैलिफोर्निया में है, जो उनके काफ़ी घर से काफ़ी दूर है। बट वो ये कहते हैं कि तुम अपने घर कोल्स काउंटी के नज़दीक में जाओ और वहीं पे एक अच्छी सी जॉब ढूंढो कि जहाँ पे तुम्हें बेस्ट वेजेस मिले। नाउ इफ़ यू विल डू दिस you will be soon out of debt, and what is better, you will have a habit that will keep you from getting in debt again. सो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि ये करने से तुम्हें क्या होगा कि पहला तो तुम डेट से, अपनी जो डेट है उधार है उससे बाहर आ जाओगे, वो अच्छी बात है। और दूसरा कि तुम कभी दूसरी बार उधार लेने की, डेट लेने की सोचोगे भी नहीं। बट इफ़ आई शुड नाउ clear you out of debt next year, you will be just as deep in as ever. अब्राहम लिंकन उनके भाई को कहते हैं कि अगर मैंने इस बार तुम्हारी डेट क्लियर कर दी तो तुम अगले साल फिर जैसे थे वैसे ही मेरे पास आओगे, जितना डेट था उससे भी कहीं ज़्यादा शायद लेके आओगे। यू से यू वुड ऑलमोस्ट गिव योर प्लेस इन हेवन फॉर $70 or $80, देन you value your place in heaven very cheap, for I am sure you can, with the offer I make, get the $70 or $80 for 4 or 5 months work. अब्राहम लिंकन के भाई उन्हें कहा करते थे कि अगर भाई आप मुझे इतने पैसे दोगे तो आप हेवन में प्लेस बनाओगे। तो अब्राहम लिंकन उन्हें ये कहते हैं कि अगर मैं इतने पैसों में हेवन में प्लेस बना सकता हूँ तो तुम तो मुझसे ज़्यादा चीपली हेवन में प्लेस बना सकते हो। और sorry guys for the disturbance. और अब्राहम लिंकन उन्हें ये कहते हैं कि तुम तो मुझसे ज़्यादा चीपली हेवन में प्लेस बना सकते हो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके भाई ने उनसे कहा था कि अगर वो उन्हें पैसे देंगे तो उन्हें हेवन में प्लेस मिलेगी, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी अगर आप मेरी डेटनेस क्लियर करते हैं तो। सो अब्राहम लिंकन उन्हें कहते हैं कि तुम इस ऑफ़र के साथ 4 और 5 मंथ में $70 और $80 कमा सकते हो। सो से इफ़ आई विल फर्निश यू द मनी यू विल डीड मी द हैंड, एंड इफ़ यू डोंट पे द मनी बैक यू विल डिलीव योर पोजीशन। नॉनसेंस। सो ये एक उनकी जो पर्सनालिटी है उनसे एक पूरा अलग चीज़ है। उन्होंने यहाँ पे ये किया है कि इफ़ आई विल फर्निश यू द मनी यू विल डीड मी द लैंड। अगर
मैं तुम्हें मनी प्रोवाइड करूँगा तो तुम मुझे लैंड प्रोवाइड करोगे, और इफ़ यू डोंट पे द मनी बैक यू विल डिलीवर द पोजीशन। और उन्होंने ये कहा है कि अगर वो मनी वापस ना कर पाया तो वो मुझे पोजीशन देगा। इसका मतलब ये है कि एक टाइप को उन्होंने पॉन किया था, कि बाटर रखा था उनके उनके साथ, कि उन्होंने गिरवी रखा था कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको लैंड गिरवे रखता हूँ, और उसके सामने आप मुझे पैसे दीजिए, और अगर मैं पैसे ना चुका पाया तो मैं ज़मीन आपको पोजीशन में दे दूँगा। नॉनसेंस, इफ़ यू कांट नाउ लिव विथ द लैंड हाउ विल यू देन लिव विदाउट इट। वो कहते हैं कि अगर तुम अभी लैंड के साथ नहीं जी पा रहे हो तो तब कैसे जियोगे। यू हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी एंड आई डू नॉट मीन टू बी अनकाइंड टू यू। On the contrary, if you will but follow my advice, you will find it worth more than 80 times $80 to you. वो कहते हैं कि मैं तुमसे काइंड हूँ, और मैं तुम भी मुझसे काइंड, और मुझे तुमसे अनकाइंड नहीं होना, लेकिन अगर तुमने ये मेरी एडवाइस फॉलो की तो तुम्हें ये एडवाइस $80 से 80 टाइम्स वर्थ फुल मिलेगी, मतलब काफ़ी कीमती एडवाइस मिलेगी। Affectionately, your brother, Abraham Lincoln. So, guys, this is the whole letter. I hope that you understood the explanation and like my explanation. So, if you like the video, share and subscribe the channel. I will keep posting such videos for the high studies. And if you have any recommendation, please make me aware in the comment section. Thank you.